Hello students, in first chapter of the unit electrostatics, you studied about one important property of electric charge, that is electric field. In this chapter, you will learn about another important property of electric charge, that is electric potential. You are familiar with the concepts of source charge and test charge. What is source charge? The charge whose electric effects are to be measured. इस केस में आप देख सकते हैं the source charge is taken as positive. What is test charge? Infinitesimally small positive charge is taken as test charge. Why it is taken so small? So that its own electric field could not affect the electric field of source charge. If this test charge is to be moved in this space around the source charge in its electric field, a force of interaction will be experienced by the test charge, and against it certain amount of work is to be done on the test charge in order to move it. You can see in this diagram Q0 is test charge and Q is source charge. It is being moved against the force of repulsion of this source charge Q. Then how will we define this term electric potential? Let us understand it. The amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to any point in the space around the source charge without acceleration is called electric potential at that point due to the source charge. अभी इन्फिनिटी का क्या कंसेप्ट है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इज अ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज. इन्फिनिटी इज अ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ द सोर्स चार्ज सीज. मतलब इस पॉइंट पर, इस टेस्ट चार्ज पर, इस सोर्स चार्ज की वजह से अगर कोई फोर्स नहीं लगता है तो दिस पॉइंट विल बी टेकन एज infinite distance for this source charge. So now we can understand this VA is equal to W infinity A by Q0. Work done per unit charge in bringing it from infinity to point A without acceleration is called electric potential at point A. It is a scalar quantity. इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलम. इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए हम VA को पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हुए इसको नेगेटिव मान लेते हैं. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अभी तक तो आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे थे एंड यू डिफाइंड द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आएगा. What is electric potential difference? If a test charge is carried from one point A to point B against the electrostatic force of repulsion due to the source charge, in this case this Q is taken as source charge, then potential difference between points B and A will be given by what? VB minus VA. V higher potential पर होगा, A lower potential पर होगा, because against the force of repulsion work is done on this test charge that is stored in this test charge. So VB is greater, तो VB minus VA is equal to work done WAB. A से B तक इसे मूव कराने में किसे Q0 को divided by Q0 is electric potential difference between points B and A. Let us find the expression for electric potential due to a source charge Q at a distance r, at any point at a distance r from it. तो हम क्या assume करते हैं? एक पॉइंट A ले लेते हैं. We have taken a point A किस डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर फ्रॉम द सोर्स चार्ज. इस पर कितना फोर्स एक्ट होगा इस सोर्स चार्ज से? F. दिस इज कूलम्बियन फोर्स. इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू दिस टेस्ट चार्ज Q0. इसको मूव कराते हैं अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड दिस dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. So this why infinitesimally small displacement is given? So that this force, Coulombian force, could be taken as constant or uniform. आप जानते हैं Coulombian force distance पर डिपेंड करता है and with change in distance it also varies. That's why this infinitesimally small displacement is taken so that F could be taken as constant.
सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंसी ऑन दिस टेस्ट चार्ज एफ एक्सटर्नल इनटू डी एक्स। लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है एफ एक्सटर्नल, वेल डिफाइंड क्या है, कूलम्बियन फोर्स। सो इन टर्म्स ऑफ कूलम्बियन फोर्स दिस विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। सो दिस विल बी एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स कॉस 180 कितना होता है, -1। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, अगर आप इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर ला रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट विल वेरी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। पुट अप द वैल्यू ऑफ कूलम्बियन फोर्स, फ्री स्पेस में अगर ये रखा गया है सोर्स चार्ज तो 1/4πε0 क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर ले लीजिए एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² and what will be integration of 1/x square, this is x to the power -2 x to the power n plus 1 by n plus 1, सिंपल मैथमेटिक्स से है ये। आपको n plus -2 plus 1 क्या हो जाएगा, x की पावर -1, that will give us 1/x and n plus 1 -2 plus 1 -1 साइन देगा हमें, माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और लिमिट इसकी वेरी कराइए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। सो दिस विल गिव अस w इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4πε0 1/r। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज कौन सा ला रहे हैं आप, क्यू नॉट को क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, v इज इक्वल टू w बाई क्यू नॉट। सो v इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाई r इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज q एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट। अब दो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, लेट अस अंडरस्टैंड। अगर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को मूव करा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज वेरी क्लोज टू फर्स्ट पॉइंट, देन सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, और उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, क्यू नॉट इंटू डी वी। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। Therefore डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी। सेम वर्क इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस कूलम्बियन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और एफ क्या है, क्यू नॉट ही इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ही, पुट अप द वैल्यू ऑफ एफ इन अबव रिलेशन, यू विल गेट सेकंड इक्वेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ही डी आर, माइनस साइन वाई बिकॉज एंगल बिटवीन एफ एंड डी आर इज 180 डिग्री। अब इन दोनों से एक ही वर्क को दिखाया गया है, सो वी कैन कंपेयर देयर आर एच एस ऑल्सो। वी गेट डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो ई कितना हो गया, माइनस डी वी बाई डी आर। ये क्या है, ऑल्दो दिस वी पोटेंशियल इज a scalar quantity but its a gradient is not a scalar quantity, it is a vector quantity। तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है ये भी हम स्टडी करेंगे। माइनस साइन shows that the direction of electric field is in the direction of decreasing potential। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ये क्या टर्म है, दिस इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू।